Namaskar, myself Pinal Dave from VIOS, Vanita Institute of Open Schooling. Let's start with small story. There are two characters in my story, Mr. Rameshwar and his son Rampal. Rameshwar says, Beta, I want you to be independent in life, so start doing some business. Rampal says, Papa, I am more concerned about my personal satisfaction in my career rather than being independent in my life. I want to become a public servant. Rameshwar says, listen to me, beta. There is nothing like satisfaction. So, dear student, we are going to learn with this specific small story. Business study, secondary, its code is 215. Lesson number 1, nature and scope of business. ધંધાનો પ્રકાર અને તેના અવકાશ વિશે આપણે શીખીશું. In this lesson, we shall learn about all such type of activities and their aspect. In your day-to-day life, you may engage in several activities. However, when someone wants to ask that what you want to do and what you want to become in your future, your answer may be, I want to do a suitable job, or I want to become a businessman, or I want to become a doctor or engineer or artist. It is mainly to earn your livelihood. લોકો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હોય છે અથવા તો પોતાની જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓને સંતોષવા ખાતર એ લોકો જે પણ કંઈક પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા હોય છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, શિક્ષક શાળામાં ભણાવે છે અથવા તો શોપકીપર છે કે જે પોતાની દુકાન લઈને બેઠો છે અથવા તો શાકભાજી વેચવાવાળા પણ એક નાનો ધંધો જ કરી રહ્યા છે અથવા કોઈ પાર્કમાં જોગિંગ કરવા જાય છે અથવા તો ગૃહિણી છે એ રસોઈ બનાવે છે. એટલે કોઈ ને કોઈ પ્રવૃત્તિ કરી જ રહ્યા છે. તો આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓના આપણે આ લેસનમાં પ્રકાર જોઈશું અને આ પ્રવૃત્તિઓ વિશે આપણે શીખીશું. હ્યુમન એક્ટિવિટીઝ. Activities which human being undertake are known as human activities. Human activities એટલે શું? તો કે માનવ પ્રવૃત્તિઓ જેને આપણે કહેવામાં આવે છે. મનુષ્ય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એ માનવ પ્રવૃત્તિ છે. There are two types of human activities, economic activity and non-economic activity. આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ. Economic activities. These activities which are performed by human beings to earning livelihood, it is called a economic activities. આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? તો કે મનુષ્ય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કોઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ, નાણાં કમાવાના હેતુથી કરવામાં આવેલી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એની આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. દાખલા તરીકે શિક્ષક શાળામાં ભણાવે અને બદલામાં પગાર મેળવે તો એ એની આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. There is a 3 type of economic activities: business, profession and employment. આર્થિક પ્રવૃત્તિના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે: ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર. Now second activities, non-economic activities. Activities which are performed by human being due to sympathy, love and affection. It is called a non-economic activities. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કોને કહેવાય? જે પ્રવૃત્તિઓ પ્રેમ, દયા, લાગણી, માયા આના લીધે જે માનવ દ્વારા જે પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે એ એની બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કહેવાય છે. એનું એક સુંદર ઉદાહરણ આપો મિત્રો. તો શિક્ષક શાળામાં ભણાવે છે તો એના બદલામાં એને પગાર મળે છે તો એ એની કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? એની આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. પરંતુ એ જ શિક્ષક એના ઘરમાં એના બાળકોને ભણાવે તો એ એની બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કહેવાય. તો આ થઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિઓના પ્રકાર. Now another topic, difference between economic and non-economic activities. उसमें first हम meaning देखेंगे. Economic activities means what? Economic activities are those by which we can earn our livelihood. जो प्रवृत्तियाँ अर्निंग मोटिव के लिए यानी पैसे कमाने के लिए की जाती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है.
और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहा जाता है? जो प्रवृत्तियाँ पैसे कमाने के लिए नहीं, लेकिन प्रेम, दया, माया, सिंपैथी, इसके लिए जो प्रवृत्ति की जाती है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। सेकंड है पर्पस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बदले में उनका संपत्ति यानी वेल्थ एंड एसेट्स में ज़्यादातर बढ़ोतरी होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के बदले में उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड इमोशनली नीड्स मिलती है। तो दिस आर द नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल देख लेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी मेरा ही, कि आई एम अ टीचर। मैं अगर स्कूल पे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो उसके बदले में मुझे सैलरी मिलती है। सो वहाँ पे स्कूल पे जो मेरी एक्टिविटीज़ है वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। बट मैं वही प्रवृत्ति मैं अगर घर पे मेरे बच्चों के साथ यानी मेरे बच्चों के साथ मैं उनको पढ़ाती हूँ तो मेरी वो प्रवृत्ति नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। वैसे ही दूसरा ही सेम है कि अगर डॉक्टर्स ऑपरेशन इन हिज क्लिनिक तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट वही डॉक्टर्स अपने बच्चों को अगर घर पे देखेगा तो उसके लिए उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोली जाती है। देयर इज़ अ 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। धंधो, व्यवसाय અને नौकरी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऐसे कोई प्रकार नहीं है। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक प्रवृत्ति અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો તફાવત જોયો આપણે. Types of economic activities. There is a 3 type of economic activities: business, profession and employment. ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર. First, business. You must have heard about Tata companies. They manufacture so many things from sell to trucks and buses and sell this to individual like you and me. In the whole process, they earn a profit. Look at the shopkeeper nearby. What does he do? He buys products in bulk and sells us in small quantities. He also earns some profit in this purpose. हम आजू बाजू जो भी शॉपकीपर्स के देखते हैं तो वो क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं? तो वो बल्क में होलसेलर के पास से माल लेते हैं और रिटेलर को मतलब के कंज्यूमर को वो माल बेचते हैं, और दोनों के बीच का जो नफ़ा है यानी प्रॉफिट है वो कमाते हैं। तो बिजनेस इसे ही बोला जाता है। નફો કમાવાના હેતુથી કરવામાં આવતી કોઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ એ ધંધો કહેવાય છે. Business may be defined as an activity involving regular production or purchase of goods and service for sale, transfer and exchange with the object of earning profit. It is called a business. फॉर एन एग्जाम्पल ट्रेडर्स है, टेलर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स है, मील ओनर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, दे ऑल आर डूइंग बिजनेस एंड ऑल ऑफ देम आर एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस. दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, बियर द रिस्क एंड वर्क फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट. ये प्रॉफिट यानी पैसे कमाने के लिए ये सब सारी एक्टिविटीज़ की जाती है और इसीलिए उसको बिजनेस बोला जाता है. नाउ सेकंड टॉपिक, प्रोफेशन. यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर्स. व्हाट आर दे एंड व्हाट डू दे डू? दे आर बेसिकली इंडिविजुअल्स हु हैव अ स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू एग्जामिन द पेशेंट. हम आजू बाजू देखते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्चुअली वो पेशेंट्स को चेक करते हैं अपनी स्पेशल नॉलेज के लिए, और उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उन्होंने उसकी एग्ज़ाम पास की है, इसीलिए वो डॉक्टर कहलाते हैं. डॉक्टर्स तो मैं भी हूँ और आप भी बन जाते हैं अपने घर पे, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं कहलाऊँगी.
आप भी डॉक्टर नहीं कहलाओगे। डॉक्टर बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट, फिल्म स्टार्स, डांसर, आर्टिस्ट, all are engaged in their own field having special knowledge and training। ये सब लोगों के पास स्पेशल नॉलेज है, उसकी ट्रेनिंग है। डांस तो मैं भी कर लेती हूँ अपने घर पे, लेकिन वो डांस नहीं कहलाएगा, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। दे ऑल आर नॉन एज प्रोफेशनल एंड दिस एक्टिविटीज दे आर एंगेज इन आर कॉल प्रोफेशन। ये सब लोग प्रोफेशनल कहलाते हैं, यानी व्यवसाय कहा जाता है उसको, और बदले में उनको फीस मिलती है। थर्ड टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। यू हैव सीन पीपल गोइंग रेगुलरली टू ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, फर्म्स एक्सेट्रा फॉर वर्क। These are individuals who are engaged by organization or individuals to work for them in return for a wages or salary. They are said to be in employment. हम देखते हैं कि लोग ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्रीज जाते हैं काम करने के लिए। वो अपना काम खुद करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करते हैं। तो एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, इसे ही एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कहा जाता है, और उन लोगों को बदले में सैलरी मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, पोस्टमैन की ही हम बात कर ले। वी फाइंड अ पोस्टमैन इज एन एम्प्लॉयमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू डिलीवरी लेटर। हियर द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयर एंड द पोस्टमैन इज द एम्प्लॉई। पोस्टमैन का हम एग्जाम्पल देखने जाए तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉई है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो एम्प्लॉयर है। द पोस्टमैन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन एंड गेट्स अ मंथली सैलरी इन रिटर्न। जो पोस्टमैन जो भी काम करता है वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर में काम करता है और बदले में उनको सैलरी मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, इसमें फर्स्ट टॉपिक है डील्स इन गुड्स एंड सर्विस। इट इज़ एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। द गुड्स मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। सिमिलरली, सर्विस may be in the form of transportation service, banking, insurance, etc. बिजनेस ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे व्यक्ति एंगेज रहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रवृत्तियाँ करता है या माल या सेवा यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस की भी प्रवृत्तियाँ करता है। द गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। सिमिलरली, सर्विस की हम बात करें तो बैंकिंग की सर्विस है, वेयर हाउस की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है, एडवर्टाइजिंग की सर्विस है। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इफ अ पर्सन प्रोड्यूस और बाय अ प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन or for gifting it to another, he is not engaged in business. अगर कोई बंदा अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन वही बंदा अगर वो गुड्स किसी प्रोडक्शन के लिए खरीदता है या किसी को बेचने के लिए खरीदता है तो वो प्रवृत्ति उसकी बिजनेस कहलाएगी। Third, regular exchange of goods and service. The activities must be carried on regularly. A single transaction is usually not treated as a business. For an example, if a person sells his old car at a profit, it is not treated as a business activity. अगर कोई भी एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे की जाए तो वो बिजनेस कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई एक बंदे ने दूसरे बंदे को ओल्ड कार
प्रॉफिट से बेची तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन वो ही एक्टिविटीज़ अगर वो रेगुलर बेसिस पे करेगा तो वो प्रवृत्ति उनकी बिजनेस कहलाती है। फोर्थ, रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड सम इन्वेस्टमेंट in cash or kind or both. It is usually provided by the owner or is borrowed by him at his own risk. सभी प्रकार के जो बिजनेस होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। वो चाहे अपने आप खुद रोके पैसा या किसी और के पास से बोरो करे, अपने रिस्क पे सभी बिजनेस में पैसा रोकना ही पड़ता है। फिफ्थ, एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस हो इसमें प्रॉफिट एसेंशियल होना ही चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस की प्रवृत्तियां है और इसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है। 6. Involves risk and uncertainty of business. The earnings are always uncertain because the future is unpredictable and a businessman has no control over certain factors that affect his earning. Every business involves an element of risk and the same is borne by the businessman. The owner. कोई भी बिजनेसमैन को पता ही होता है कि अगर उनको धंधा करना है तो उनको रिस्क के साथ करना पड़ेगा। अभी का ही एग्जाम्पल हम लेंगे तो कोरोना की वजह से कई सारे बिजनेस बंद करने पड़ेंगे, तो ये एक तरह से रिस्क ही हुआ। हमने ये जो सारे टॉपिक लर्न किए उसके रिलेटेड मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है। MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक यानी बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहा जाता है। उसके आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस।